very first achievement was when our parents got convinced for this entire business model. 30 मिनट्स में पिज्जा ना आए पर हमारा मैकेनिक आपके पास पहुंच जाएगा. Frankly, I can say, we have started this business by accident. Because completely I got into one situation. Don't forget to call Spanwings. अभी पूरा तो ट्रेनिंग चांगलं दिले त्याला मी चांगलं ट्रेनिंग दिले ठीक है घ्या शॉर्ट घ्या. Hello everyone, welcome to our channel. Here we are having open talk with the industry, and today we are having a guest, the founder of Spanwings, which is a Pune-based startup. Welcome Omkar and Akshay. थैंक यू. So very first, I would like to ask you कि तुम्हारे कंपनी के बारे में, तुम्हारे स्टार्टअप के बारे में हमारा ऑडियंस जो है उनको पहले इंट्रोड्यूस करो कि व्हाट इज योर स्टार्टअप इज. So basically, Spanwings, it's a roadside assistance company. We have started in 2017. It's completely Pune-based startup. We are catering all the major, minor services for related to bike or cars. Basically, major or minor repairs or maybe towing services, battery jump start, anything and everything that you need for your car and bike. We are the one who can give you that service. Okay, you are mainly bike and car service, We're maintenance oriented way. Right. Exactly. Okay. So mainly the problem which your startup is solving is the maintenance or breakdown अगर कहीं पर कुछ रहा. Majorly breakdown. Right. Okay. So उसका solution मिल जाए आपके स्टार्टअप थ्रू आप देते हो. तो उसी के साथ मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि एक्चुअली एग्जाम्पल ऐसे पकड़ो कि मेरी गाड़ी है पुणे रीजन में, आप बोल रहे कि आपका मेनली वर्किंग जो है पुणे रीजन में. सो इफ कंसिडर अ केस कि मेरी गाड़ी बंद पड़ी है मे बी शिवाजी नगर में. सो उस केस से अभी आपका स्टार्टअप कैसे काम करता है, मतलब स्टार्ट टू एंड. ओके. फर्स्ट फिलहाल ही आपकी गाड़ी अगर बन गिरी तो आप फिलहाल क्या करोगे कि आसपास कहीं पर कुछ गैरेज और मैकेनिक वगैरह नहीं दिखा, कुछ आपको हेल्प आउट करने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं मिला, आप गूगल पे जाते हैं. गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करते हो कि कोई मिलेगा या नहीं. आपको वहां पर हमारा नाम दिख जाएगा. ऐसा है, आपको सिर्फ उस पर हमारे वेबसाइट पर जाना है, सिर्फ कॉल बटन पे कॉल करना है और आपको कहाँ पे लोकेशन बताना है, गाड़ी का मॉडल वगैरह क्या है और इशू क्या है, वो सब सारे डिटेल्स में बताना है. बस वही का आपका काम खत्म हुआ, हमारा काम स्टार्ट. तो विद इन हाफ एन आवर हमारा मैकेनिक या टोइंग वैन आपके पास आ जाएगा. ओके. वो डे हो या नाइट हो. So within 30 minutes, we will assure you that we will get service. 24/7. राइट. सो मतलब अगर बीच रास्ते में रात में अगर मेरी गाड़ी अगर बंद पड़ी, नाउ आई कैन रिलाई ऑन आवर फ्रेंड स्टार्टअप व्हिच इज अ Spanwings. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी I would like to know about you before starting the company, before working on your startup. We would like to know about you as a engineer and then as a founder also. We are basically actually classmates. I mean, we were in diploma also. We have done diploma. In Actually, mechanical. we all are classmates. Yeah, we all are classmates. For mechanical engineering itself. In fact, roll numbers are also next to each other. Okay, so actually we are diploma mates, 2012 pass out from the Pimpri Institute College of, it's PCP College from the Pune itself. Yeah. So yeah, continue. Yeah, so later on, we both pursued our engineering BTech from Symbiosis College. And after BTech, he went for a job, and I completed my MBA from India. And then within those couple of years, we thought, I mean, we actually gone through the same problem. I mean, one fine day we actually faced the issue where our bike was stuck at night. And at that day, actually, we were really looking for, a solution and, someone who can help us out with that breakdown. But it was very difficult time. I mean, no one was there to provide genuine service. And obviously, I mean, we got manipulated at that time. Clearly, we got manipulated because the service which we were getting, that was clearly, I mean, I don't know what we can say, but it was difficult at that situation. And then next day, we actually had a thought maybe there could be some service which we can provide at 24/7 and people can rely on us. Okay. So that was the main idea behind this, startup. Okay. So what about you, Akshay?
जैसे कि इसने बताया कि डिप्लोमा रिलेटेड हमारा इंजीनियरिंग रिलेटेड सब सारा करियर है। मैंने डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग के बाद जॉब किया। जॉब रिलेटेड में 3 साल मैंने काम किया, बट कुछ उसका सेटिस्फेक्शन नहीं था कहीं पर भी कि करना है क्या करना है। बट इसके साथ मेरा बात हुआ तब इसने बताया कुछ इस रिलेटेड कुछ करते हैं। सो बेसिकली हम और ये और मैं मिलकर स्टार्ट करते हैं ये बिजनेस। जैसे कि ये स्टक हुआ कहीं पे, उस रिलेटेड हमने चालू किया। Well, frankly, I can say, we have started this business by accident. Because completely I got into one situation, and next morning I thought maybe this is something we can, maybe this kind of service is something that people will surely need. So then I contacted Akshay, and then we have started. So, frankly speaking, कि मुझे ऐसे लगता है कि ओपिनियन मेरा ऐसे कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप जो होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप ऐसे कि बाय एक्सीडेंटली होते हैं, जहाँ पर हम लोग एज ए इंजीनियर हम लोग किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। हमको ऐसे लगता है कि जैसे ओमकार ने एक्शन में बताया कि वी ऑब्जर्व समथिंग प्रॉब्लम, हम लोग मिडनाइट में कहीं तो स्टक हुए एंड हमको ऐसा लगा कि यार अभी क्या करें। सो ऐसे कुछ सिचुएशन होती है, ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज होती है, हमको वहां पर हिट करना होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज आते जाते रहते हैं, हम लोग कौन से अपॉर्चुनिटी को हिट करते हैं दैट इम्पोर्टेंट मैटर होता है, या फिर उसको हिट करना इम्पोर्टेंट होता है, जहां से मेनली स्टार्टअप बर्थ लेता है। सो विद दिस माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एज अ स्टार्टअप फाउंडर इन अ स्पैन विंग, व्हाट इज योर रोल एंड व्हाट इज योर रोल इंडिविजुअली? Individually, if we say, I actually basically look into all marketing things, and Akshay is basically covering all operations part, basically vendor relations, vendor meetings, and mostly all those things, and maybe digital marketing and all other channels where we can present ourselves, our span wings. Okay. So that is something that is taken care by me. So mainly there are the two departments, where mainly the marketing. First one is the marketing, which is handled by you, and second one is the you can call it a technical or you can call it a operational, handled by the Akshay. So my one question ये भी रहेगा कि एज अ ऑपरेशन का कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो फॉर हमारा जो ऑडियंस जो है उनके लिए, कि एक ऑपरेशन मतलब कि मेनली लोगों के लिए ऑपरेशन मतलब डॉक्टर को ऑपरेशन लाइक। सो ऐसे जो ग्रेजुएट जो मेनली उनके लिए कुछ एक रियलिस्टिक एग्जांपल कि हाँ ऑपरेशन मेनली काम मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा एंड होता है, कुछ एक रियलिस्टिक एग्जांपल। ऑपरेशंस स्टार्टिंग से अगर जान रहे हो, ऑपरेशंस मतलब स्टार्टिंग वेंडर जनरेशन से लेकर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जितना भी बीच में का कोरिलेटेड वर्क रहता है वो उसका बेसिकली रहता है ऑपरेशंस। ओके, मतलब वेंडर जनरेशन से लेकर कस्टमर मतलब सेटिस्फेक्शन। मेरा मैकेनिक का शॉप है, मैं कहीं पर मेरा शॉप है, तो तुम मेरे पास आओगे तो वहां से तुम्हारा प्रोसेस चालू होगा, मेरा ऑपरेशन चालू होगा। ओके, एंड हमारा कैमरामैन जो है वो कस्टमर है, मैं उसको सेटिस्फाई करना, तो ये प्रोसेस जो है वो बेसिकली ऑपरेशन। ओके, एज अ फाउंडर या फिर एज ए इंजीनियर, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट और सक्सेस टिल डेट फॉर बोथ ऑफ यू इंडिविजुअली? So maybe I think achievement for us, maybe ki very first achievement was when our parents got convinced for this entire business model. Because they were like, when initially we were also starting and roaming around the city for to work for a base of this business idea, they were thinking, are you really, I mean, what are your plans, what are you really doing with this entire idea, do you think you are going to succeed? So to all of us also, to all of you also, you will always face first challenge from your own parents, Right. when you are starting altogether new business. Right, obviously. So that will be concerned. Maybe for me, I feel that was our first achievement. When parents were also convinced, this is something you can do and maybe you can earn out of it. That is your first achievement as a engineer, as a founder, First. कि बाबा मैंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया, अभी मेरा टेंशन खत्म। What about you, Akshay? मेरे रिलेटेड कुछ ऐसा प्रॉब्लम है पेरेंट्स की तरफ से, मेरा ज्यादा इसकी तरफ से प्रॉब्लम आया था, पेरेंट्स की कन्विंस नहीं हो रहे थे, पर मैंने ट्राई किया कुछ करते, मेरे पेरेंट्स एग्री हुए और उनसे कुछ हेल्प आउट लिया था मैंने जब स्टार्टिंग में। बट मेरा अचीवमेंट रिलेटेड बिजनेस है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि मेरा कस्टमर फंसा था सापुतारा में, जो सापुतारा
पुणे पे It's in Nashik. It's in Nashik and Gujarat border. Maharashtra Gujarat boundary. Basically, it is 250 kilometers from here, and he needed help. And उधर जंगल था पूरा. उसने हमें रात के 11 बजे कॉल किया. उन्होंने सिर्फ हेल्प आउट के लिए क्या बोला कि मेरे किधर कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही, आप कुछ भी करके कुछ हेल्प कीजिए. सर मैंने बताया कि आपको मैं पुणे बेस्ड कंपनी से ऊपर आपके मैं कुछ हेल्प आउट नहीं कर सकता है. नहीं कुछ सर देखिए करके. ठीक है सर, मैं एक काम करता हूँ, टोइंग अरेंज कर देता हूँ, तो उसके लिए 5 घंटे लगेंगे, आपको 5 घंटे लगेंगे. ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मैं रुकता हूँ, कुछ भी करेंगे. ठीक है रुकता हूँ. ठीक है, मैं गाड़ी निकाली, 5 घंटे में वहाँ पे गाड़ी पहुंचने के बाद वहाँ से गाड़ी पुणे में ले गया. मुझे 250 किलोमीटर जाके वापस लेकर गाड़ी आना. 500 kilometers travel overnight. हाँ. तो वो कस्टमर इतना खुश हुआ कि बाद में उसने मल्टीपल लोगों से जाके हमारे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की. तो वही हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है वही वाली. राइट. तो जिससे दोनों ने बताया कि एज अ अचीवमेंट, एज अ इंजीनियर हम लोग जो अपना करियर चालू करते हैं, एज अ स्टूडेंट पहले टीचर को कन्विंस करो, फिर कुछ प्रॉब्लम आया असाइनमेंट का, कुछ एग्जाम का, तो फिर चोरी को कन्विंस करो, फिर घर पे आके कुछ कम मार्क्स वगैरह आए तो फिर से पेरेंट्स को कन्विंस करो, किसी को गर्लफ्रेंड अगर रही तो उसको कन्विंस करो, जॉब अगर रहा तो एचओडी को कन्विंस करो, बाद में स्टार्टअप करना खुद को कन्विंस करो, फिर कस्टमर को कन्विंस करो. बट इट्स अ चैलेंजिंग वर्क एंड इट्स ये जो जर्नी जो होता है डेफिनेटली हेल्प यू टू इवॉल्व डे बाय डे. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, हमने तो बात अभी की अचीवमेंट की, सक्सेस की. सो बेसिकली टिल डेट व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट फेलियर यू फील टिल डेट? हमें प्रॉब्लम्स आए बहुत कि वेंडर्स किस तरह. हम जब 6 महीने हमने काम किया इस बेसिस स्टार्ट, जब भी लॉन्च करने के से 6 महीने पहले हमने वेंडर्स जनरेट करना चालू किया था. आफ्टर स्टार्टिंग योर स्टार्टअप, बिफोर लॉन्चिंग, बिफोर 2017 नवंबर. ओके. 6 महीने तक हमने वेंडर्स के लिए हेल्प आउट करने के लिए हमने बिजनेस चालू कर रहे हैं कि हमारे साथ काम कीजिएगा, आपको काम मिलेगा. तो इतना कन्विंस नहीं थे कि हमारे साथ हमारी तरफ से कुछ काम मिलेगा ये वो करके, वो हमसे अवॉइड करने लगे थे. ऐसे वो हमें मल्टीपल मार्केट कंपनी जो कि पैसा लेते हैं वेंडर्स से कि आप हमें पे कीजिए, आप हमको काम देंगे ऐसे. पर हमने उनको क्या बोला, आप हमें पे मत कीजिएगा, हम आपको काम देंगे. तो उस बेसिस पे वेंडर्स ने हेल्प आउट किया हमें. तो जब भी हमने स्टार्ट किया रेगुलरली इन 1 month ओनली वी स्टार्टेड गेटिंग देयर कॉल्स. Around in first month only we had given them around 60 to 70 calls. 60 to 70 calls. बाबू. Leads. Leads. Clearly say to those specific vendors. Per one vendor. Per vendor. Per vendor. And it's a total कितने vendors? 350 vendors. 350 vendors we have as of now. With the मतलब entire 3 years में 2017 से लेकर 2020 में you have more than 350 vendors. Vendors. Just to मतलब क्लेरिफाई करने के लिए, अगर किसी को डाउट अगर है तो एज अ वेंडर मतलब आप क्या बोल रहे हो? Exactly see how Mechanic. it works. Exactly how it works when you are calling me from certain location in Pune. Okay. So just to ensure, our motto is to give you service within 30 minutes. Within 30 minutes. 30 minutes. Once So I call you, हाँ. within 30 minutes you will give me Exactly. service. So what we are doing in backend is like we have certain mechanics around the city. Okay. And those are vendors for us. Those are actually working Of course. working So for us. mechanic stores differently. Yes, So yes. वो nothing but तुम्हारे vendors. Exactly. Yes, So yes. those are the people who will get back to you within 30 minutes and they will help out with any of your problem. Okay. So Certain that's minutes. basically see we are working on aggregate model. Aggregate models. Okay. तो 30 मिनट्स में पिज्जा ना आए पर हमारा मैकेनिक आपके पास पहुंच जाएगा. फिर से देखो 30 मिनट में पिज्जा की बात होती है, पर अभी यहाँ पर स्पैन विंग 30 मिनट में आपके यहाँ पर पहुंचेगी. तो एक बेसिकली जैसे हमने फेलियर की बात की, जिसे अक्षय ने बताया कि ग्रेटेस्ट फेलियर हमारे लिए क्या था कि इनिशियली कन्विंस करना. सो एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि कन्विंस करना एक फेलियर नहीं है, एक्चुअली इट्स अ चैलेंज जो कि एज अ स्टार्टअप सबको करना होता है. एंड इट्स वही एक चैलेंज था. आई थिंक वही तुमको मेनली यहाँ तक आज लेकर आए. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विल बी it will be mainly related to
इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इंजीनियरिंग कॉलेज, वी ऑल नो कि फ्रॉम 2016-17 के बाद इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या फिर ग्रेजुएट्स की हालत मार्केट में क्या है, वी ऑल नो कि मार्केट में कंडीशन क्या है. सो पर्सनली ओपिनियन तुम्हारा क्या है कि व्हाट की मिस्टेक एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वो उनकी की मिस्टेक क्या लगती है एज अ स्टार्टअप फाउंडर? स्टूडेंट्स की एंड कॉलेज. स्टूडेंट्स एंड कॉलेज. Maybe about college, I can say one point. You know, college always train you in such a way that you should get placed in certain company. So, you know, job placement is a key target for college also and for students also. But बहुत ऐसे कम कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है. सो दैट इज समथिंग दैट आई बिलीव कि यू नो कॉलेज ने थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए. कुछ कॉलेजेस में है डेफिनेटली देयर आर सम एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स, बट वेरी रेयरली आई कैन सी वेरी कई बार तो बस नाम के लिए भी होता है. एग्जैक्टली. तो दैट इज वन मैसेज आई मीन आई बिलीव कि कॉलेज ने एक्चुअली थोड़ा फोकस बिजनेस के लिए भी बच्चों को देना चाहिए. Okay, so Akshay, what do you feel कि स्टूडेंट या फिर कॉलेज, व्हाट्स योर ओपिनियन? कॉलेजेस में क्या होता है, थ्योरेटिकल पार्ट्स बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बाहर जाने के लिए प्रिफरेबल रहता है. सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए. अगर आप मार्केट में जा रहे हो कहीं पर भी या जॉब के लिए जा रहे हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इज द मस्ट, ना कि थ्योरेटिकल नॉलेज. सो बेटर यही रहेगा कॉलेजेस के लिए कि वो फोकस करें प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्टडी ओरिएंटेड. यस, मेनली वही होता है कि दो चीजें मेनली, इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूट. Yes. वेयर इंस्टीट्यूट मेनली फोकस ऑन थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन एंड इंडस्ट्री मेनली वर्क्स ऑन प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन. यस. सो मेनली एक पॉइंट होता है कि जहां पर दोनों को ब्रिज करना इंपॉर्टेंट है. ये भी एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, जहां पर हम लोग दोनों को ब्रिज करके एक नए स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी, जहां पर नए जो इंजीनियर जो है, जो पैशनेट है कुछ करने के लिए, जो उनको लगता है कि मेरे में कुछ दम है या फिर मैं कुछ टेक्निकली साउंड हूँ, मैं कुछ बोलने में अच्छा हूँ, दे कैन वर्क ऑन दिस अपॉर्चुनिटीज. मेनली फोकस करना क्या है कि तुमको ऑब्जर्व करना है एज अ स्टूडेंट एंड वो अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करना है, एंड जो तुम्हारे स्वीट स्पॉट में फिट होगा यू हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. सो गुड. So my next and maybe the last question will be, what advice and what suggestion you would like to give to the fresh graduates, those who are getting passed out from the colleges? For graduates, all I can say is, you know, there should not be only target to get placed in certain company. You can always think of, you know, smallest problem and maybe a solution that you can provide, and maybe you can add some value to that problem. So that is, you know, business for you. Okay. So that is one take for you guys. इम्पोर्टेंसली कि अपना गोल नहीं रहना चाहिए कि हमें जॉब ही करना है बस हमें. ठीक है, मुझे बिजनेस का आइडिया भी कभी आया कि 1 साल के बाद मैंने जॉब किया, उसके बाद की अपॉर्चुनिटी आगे नहीं थी तो मैं 4 से 5 महीने घर में था. उसमें थिंकिंग जनरेट होने लगी, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है. तो तब भी आपका दिमाग बंद नहीं रखना चाहिए कि कुछ नहीं हो सकता. ये 5 महीने में थिंकिंग करना चाहिए कि आप क्या करोगे. जॉब रिलेटेड नहीं है पर बिजनेस रिलेटेड तो कुछ कर सकते हैं आप. जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, पर आप क्या कर सकते हो आगे जाके, क्या कर सकते हो ये देखना जरूरी है. राइट. सो मेनली इसको अगर समराइज अगर हम लोग करें, मेनली स्पैनविंग टीम जो है, मेनली फाउंडिंग टीम, मैंने कहा मेनली आई थिंक ओपिनियन यही रहेगा कि एज अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या फिर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर लास्ट ईयर हो, कि मुझे ऐसे लगता है, मैं थोड़ा मेरा भी ओपिनियन इसमें ऐड करूंगा कि हमारा जो लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट जो होता है, मेनली पीपल आर फोकस्ड ऑन कॉपी पेस्टिंग, जहाँ पर लोग ऑर्डर देते बाहर पर कि सर मुझे प्रोजेक्ट बना के दो. बट इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर हम लोग किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर आइडेंटिफाई करें, मेनली आप मिल सकते हो स्टार्टअप फाउंडर को, आपके आजू बाजू जो आपकी कम्युनिटी जो है, आपको उनको मिलके आप उनको अगर पूछो कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओ, हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे. जैसे अक्षय ने पॉइंट मेंशन किए कि 4 महीने में घर पर था, लेकिन थिंकिंग मैटर करती है. अगर आपकी थिंकिंग अगर नहीं रही तो डेफिनेटली इट्स लाइक अ पॉइजन फॉर ऑल ऑफ यू. मेजर टेक अवे फ्रॉम दिस मीट फॉर यू गाइज. फर्स्ट वन,
विल बी एज ए इंजीनियर हमारा काम मेनली होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना एंड उसके ऊपर सॉल्यूशन देना। इंजीनियर का मेन यही तो रोल है, जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करना है, उसके ऊपर काम करना है एंड उसको सॉल्यूशन बिल्ड करना। वो थिंकिंग जो है, जैसे कि अक्षय ने कहा था कि थिंकिंग के ऊपर काम करना हमारा एज ए इंजीनियर वो मेजर रोल है। एंड सेकंड, कि आपकी जर्नी में, आप में भी स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, कि जर्नी में आप जब भी कुछ स्टार्टअप के ऊपर काम करोगे, आपके पास कुछ आइडिया आएगी। आइडिया तो हर एक के पास होती है, डेली हमारे पास 10-10 आइडिया हमारे पास डेली आते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है, वो जो आइडिया है, क्या वो आइडिया सच में रियलिस्टिकली काम कर सकते कि नहीं, और वो उससे हम लोग किसी को कन्विंस कर सकते कि नहीं। अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आपको खुद के ऊपर वो भरोसा होना चाहिए कि क्या ये आइडिया वर्थ इट है टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम। दैट्स इट फ्रॉम आवर फर्स्ट मीट। एंड हाँ, पुणे रीजन में आप कभी आपके बाइक के साथ या फिर कार के साथ अगर स्टक हो, गाड़ी अगर ब्रेक डाउन हो, तो डोंट फॉरगेट टू कॉल स्पैन विंग्स। थैंक यू।